Hello everyone, welcome to my channel, The Unstable Earth. I am Akanksha Upreti. Today I am going to start with a new chapter, Globe Latitudes and Longitudes of Class 6 CBSE and CERT. In the previous chapter, we have studied about Earth and its solar system. Today we are going to understand some of its features. So before going further, we have to understand what do we mean by globe. So we cannot see Earth directly from our eyes, so because of which we have formed a model which is similar like Earth, which we call as globe. So we can say that globe is a true model of the Earth. Globe may be of different size, it can be of different shape, it can be as big as you can imagine, and it can be as small as you can keep it in the pocket of the so you can carry it from one place to another. So all the features that we see on the earth's surface, like countries, continents and oceans, we can see it on the globe as well. Okay, so as you can see, this is the globe, and you can see that it is somewhat tilted in shape. It is not exactly fixed like in a straight form. So in the similar way, our earth is also in tilted shape. So in the place where it is fixed, north pole and south pole, we called as axis. Okay, so they are fixed in its axis. The earth is fixed in its axis and it rotates from west to east in its own axis. Okay, and in actual earth, if we see, there is no actually fixed needle in it. It is just an imaginary, but it is tilted in actual form. So the 2 points on the globe through which the needle passes are the two poles, north pole and south pole. North pole and this south pole. So it is fixed like in a tilted form. The globe can be moved from needle from west to east. So it rotates from west to east as the earth moves. But we have to remember that it is not fixed in actual way. It is just an imaginary line, and there are some other imaginary lines on the earth surface as well, like an equator which passes through the mid of the earth, which divides the earth into two equal halves. In the northern side we call it as northern hemisphere, and in the southern side we call it as southern hemisphere. Okay, another imaginary line running on the globe divides into two equal parts. This line is known as the equator. The northern half of the earth is known as the northern hemisphere, and the southern we call it as southern hemisphere. And as we see that the equator is an imaginary circular line and is very important reference point to locate a place on the earth. If we see that from the equator, we can say that Europe is located in the northern hemisphere and Australia is located in the southern hemisphere. So it also help us in locating the places as well. So all the parallel lines from the equator up to the poles, सारी की सारी जो पोल इक्वेटर से पोल्स की टूवर्ड्स को ये पैरेलल लाइंस जाती हैं, इन्हें बोला जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. ओके, तो यहाँ जो पैरेलल्स के जो लाइन बनी होती है, ऐसे ग्रिड्स देखी होंगी आपने ग्लोब में जो बनी होती है, इन्हें बोला जाता है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. वील स्टडी अबाउट इट फर्दर. सो द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री, और इक्वेटर होता है हमारा 0 डिग्री का, एंड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द नॉर्थ और साउथ. तो नॉर्थ के टूवर्ड्स को जाएंगे तो इट विल बी हाईएस्ट में होता है 90 डिग्री और साउथ पोल में हो जाएगा 90 डिग्री. एंड इफ़ वी कैलकुलेट तो 90 प्लस 90 इट विल बी 180 डिग्री. तो हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, 180 डिग्री के. सो हेयर वी हैव लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. अगर हम देखें, ये है हमारे लैटिट्यूड्स. अगर हम इसका मिड पॉइंट देख लें, ये होगा इक्वेटर. और अगर हम इक्वेटर से ऊपर को जाते रहेंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये जो लैटिट्यूड्स है ये डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, वेर एज लॉन्गिट्यूड्स में ऐसा नहीं होता. अगर इसका जो मिड पॉइंट होता है वो सिमिलर रहते हैं और ये डिक्रीज़ नहीं होते. अगर किसी को प्रॉब्लम होती है किसी को याद करने में कि लैटिट्यूड्स कौन से होता है, लॉन्गिट्यूड्स कौन से होता है, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन होता था ये पहले, तो मैंने ऐसे याद करा कि लेटा हुआ क्या होगा, लैटिट्यूड होगा, एंड लॉन्ग इज़ ऑलवेज लॉन्गिट्यूड. सो आप भी ऐसे याद कर सकते हैं.
So the lines running from the north to south are called longitudes, and the lines running from parallel to the equator are called latitudes. All parallels north of the equator are called north latitude, जो north के ऊपर होगा नदर्न साइड को, नदर्न हेमिस्फेयर में, वो नॉर्थ लैटिट्यूड कहा जाएगा उनको, और जो साउथ को होंगे इन्हें साउथ लैटिट्यूड कहा जाएगा. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आप देख रहे हैं, अगर हम इक्वेटर को मिड पॉइंट माने 0 डिग्री, तो इक्वेटर से अगर हम नदर्न साइड को जाएंगे या सदर्न साइड को जाएंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पड़ता है 90 डिग्री का. तो 90 डिग्री का अगर हाईएस्ट पॉइंट पड़ रहा है तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं 90 नदर्न 90 सदर्न में, तो इट विल बी 180 डिग्री. तो हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड जो होते हैं वो कितने होते हैं 180 डिग्री के. और वेरेज हम लॉन्गिट्यूड को देखेंगे तो ये है उसका मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट से अगर जाएंगे, अगर हम एक सर्कल कितने का होता है पूरा 360 का, तो 360 का अगर ये सेमी सर्कल बना रहा है तो ये सेमी सर्कल हाफ बनाएगा 180 का. एंड इफ़ वी कैलकुलेट 180 प्लस 180, क्योंकि 180 और फिर यहाँ पे को हाफ सेमी सर्कल 180 दोबारा, तो इट विल बी ऑफ 360. तो हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं 360 के. एंड ये मैप है, हम वॉल मैप आपने देखा होगा. अगर ये वॉल मैप पूरा ये वर्ल्ड का मैप है, अगर हम इसको ऐसे रोटेट कर दे, ऐसे फोल्ड कर दे सर्कुलर फॉर्म में, तो ये एक ग्लोब शो कर देगा. सो नाउ इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. जैसे हमने पैरेलल बताया, पर इसकी इम्पोर्टेंस भी होती है कुछ, और इम्पॉर्टेंट पैरेलल कौन से होते हैं हम सारे रीड नहीं करते, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स होती है. लेट अस सी. सो फर्स्ट है हमारा इक्वेटर जो हमारा 0 डिग्री में पड़ता है. देन वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास थ्रू होता है हमारे इंडिया से. देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, देन अंटार्कटिक सी इन द सदर्न हेमिस्फेयर एंड आर्कटिक सी इन द नदर्न हेमिस्फेयर, देन नॉर्थ पोल एंड देन साउथ पोल सदर्न हेमिस्फेयर में. और इनकी कुछ डिग्रीज होती है जो आपको याद रखनी होगी. जैसे 0 डिग्री में हमारा इक्वेटर होता है, अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जाए तो हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि हम नदर्न साइड को जा रहे हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ क्योंकि नदर्न साइड, एंड देन 90 डिग्री. एंड देन नीचे को आएंगे तो वही सेम डिग्रीज रहती है, बट यहाँ पर को डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी साउथ पोल की टुवर्ड्स को. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सी, अंटार्कटिक सी, एंड देन मिड में आ गया हमारा इक्वेटर. नाउ लैटिट्यूड्स के कुछ इम्पोर्टेंस होती है, तो उसकी सबसे पहली इम्पोर्टेंस क्या होती है, हमारी हीट जोन्स को शो करती है. अब हीट जोन्स कैसे, लेट अस अंडरस्टैंड. सो इफ़ वी सी दिस डायग्राम, इसको अगर हम सन मान ले, ठीक है, तो ये फ्लैट या स्ट्रेट सरफेस में अगर सन की रेज जा रही है, ओके, सन की रेज जा रही है तो ये डायरेक्ट सामने जा रही है, जिसके वजह से जो एरिया कवर हो रहा है ये बहुत स्मॉल हो रहा है और हीट भी यहाँ पर को बहुत ज़्यादा इंटेंस होगी. वेरेस अगर हम इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दे, अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा टिल्ट कर दे, तो ये जो सन की हीट होगी और लाइट होगी ये बहुत डिस्टेंस तक का जाएगी और इंटेंसिटी भी इसकी थोड़ी सी एज़ कंपेयर कम होगी इससे. ओके, तो हमने स्टार्टिंग में देखा ग्लोब भी हमारी क्या होती है, टिल्टेड होती है, और ग्लोब क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ. तो हमारी अर्थ भी क्या है, टिल्टेड फॉर्म में है, जिसके वजह से जो सन की रेज है वो टिल्ट स्लांट हो जाती है हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक का आने तक का. इक्वेटर के पास भी इतनी इंटेंस होती है, काफ़ी इंटेंस होती है, पर ये ज़्यादा एरिया कवर करती है. सो द टॉर्च लाइट फॉल ऑन अ स्ट्रेट surface is bright and covers a smaller area. Torch light falling on a slanted surface is less bright but covers a bigger area. The midday sun is exactly overhead at least once a year. Okay, अब जो हमारी अर्थ होती है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. अब हमारा जो सन होता है ये हमेशा ओवरहेड होता है, हमेशा नहीं, मतलब ये हमारी अर्थ जैसे रोटेट करती है वैसे हमारे ये ओवरहेड रहता है इन तीनों लैटिट्यूड्स में, एक बार आता ही आता है, जिसके वजह से यहाँ पर को इनकी हीट की इंटेंसिटी उस रीजन में बहुत ज़्यादा पड़ जाती है. पर क्या होता है, अगर सन यहाँ भी रहे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, तो हमारी जो इक्वेटर होती है वो कंटिन्यूसली स्लांटेड हीट तो रिसीव करती ही करती है. तो
latitude in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat. इसलिए इस एरिया, ये जो एरिया होता है इक्वेटर के ऊपर और नीचे वाला थोड़ा सा, तो ये हमेशा एरिया हमेशा मैक्सिमम हीट रिसीव करता है, इसलिए इस रीजन को बोला जाता है टॉरेड जोन. वेयर एज अगर हम यहाँ से ऊपर को जाए, मतलब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर को जाए, तो जो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो एरिया है, यहाँ पर को जो रेज होती है वो स्लांटेड जाती है, तो हीट भी क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है ना ज़्यादा गर्म होता है, तो यहाँ पर को टेम्परेचर मॉडरेट होता है, जिसके वजह से इस रीजन को बोला जाता है टेम्परेट जोन. ओके, अब इससे थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे तो हम देखेंगे जैसे हमारी अर्थ है, अभी तक हमने पढ़ा कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहाँ पर को हमारा इक्वेटर 0 डिग्री, अगर हमारे यहाँ पर को इसको बोला जाता है हम टॉरेड जोन, क्योंकि यहाँ पर को सबसे मैक्सिमम हीट रहती है. पर आर्कटिक सर्कल के वहाँ पर को हम इसको बोलेंगे टेम्परेट जोन, क्योंकि यहाँ पर को मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, टेम्परेट जोन. बट यहाँ पर को जो सन की रेज होती है पोलर की साइड को, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की साइड को, तो यहाँ पर को हमारी क्या रहती है, सन की रेज स्लांटेड आती है. अगर हमारा सन यहाँ पर को भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हुआ तो यहाँ पर को जो सन रेज जाती है वो स्लांटिंग जाती है, इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है, जिसके वजह से इस रीजन में मोस्टली स्नोफॉल रहता है, इसलिए इसको फ्रिजिड जोन बोला जाता है कि ये हमेशा फ्रीज रहता है. अब जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के वहाँ पर को हमारा सन ओवरहेड होगा, तो यहाँ पर को स्लांट रेज जाएगी, तो उस टाइम पर को 6 मंथ्स के लिए यहाँ पर को क्या होगा, हमारा डे टाइम होगा, और नीचे की साइड को, साउथ की साइड को 6 मंथ्स के लिए यहाँ नाइट टाइम होगा. ओके, तो इसीलिए हमारे नॉर्थ और साउथ पोल्स जो होते हैं वो 6 मंथ का डे एक्सपीरियंस करते हैं एंड 6 मंथ का नाइट एक्सपीरियंस करते हैं. Areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the Northern Hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the Southern Hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slant and provide less heat. These are therefore called frigid zone. Okay. So, ये तो हमने पढ़ा about the लैटिट्यूड्स. ओके, तो अभी हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा. नाउ वील अंडरस्टैंड व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, बिकॉज बिना लॉन्गिट्यूड्स के इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लोकेट अ प्लेस. टू लोकेट अ पोजिशन ऑफ अ प्लेस ओनली टू हैव अ लैटिट्यूड इज़ नॉट इनफ. 2 डिफरेंट प्लेसेस में लाई इन अ डिफरेंट लोकेशन, ईस्ट या वेस्ट की साइड को, पर ईस्ट को है क्या वेस्ट को है, हमें लोकेट करने के लिए प्रिसाइजली हमें क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर रेफरेंस देना पड़ेगा, जिसमें हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को होना दोनों का ज़रूरी है. सो दीज लाइन रेफरेंस, जैसे अगर हम लैटिट्यूड का कहते हैं तो लैटिट्यूड का मिड पॉइंट क्या लिया है हमने, 0 डिग्री इक्वेटर को. अगर हम लॉन्गिट्यूड का एक मिड पॉइंट लेते हैं तो उससे कहते हैं हम मेरिडियन. ठीक है, प्राइम मेरिडियन कहते हैं, इसलिए इसको मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स भी बोला जाता है. एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज. ठीक है, दोनों के डिग्रीज में मेजर करा जाता है. जैसे यहाँ 23.5 डिग्री अभी हमने पढ़ा था, और 66.5 डिग्री एंड 90 डिग्री. और वैसे ही जो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स होता है वो 180 होता है, और लॉन्गिट्यूड्स होता है तो 360 होता है. ओके, तो जो हमारी ये मेरिडियन है वो पास थ्रू होती है ग्रीनविच से. ठीक है, जो कहाँ है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड. दिस मेरिडियन इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है, और इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं ईस्ट और वेस्ट से, मतलब ई और डब्ल्यू से भी, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर को लेके. ओके, सो हेयर जैसे मैंने इसमें शो कर रखा है पॉइंट्स, जैसे अगर आपको ए प्लेस लोकेट करनी है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको, जैसे ये लैटिट्यूड मान लीजिए कि लैटिट्यूड बी होगा तो ये तब लोकेट होगा कि बी आपने पॉइंट आउट कर लिया, तो ये कहीं भी फॉल कर सकता है इन लैटिट्यूड्स में. पर हमें लॉन्गिट्यूड होना भी बहुत ज़्यादा कंपलसरी है. अगर हम इसको पूरा परफेक्टली बता दें कि B3 में हमारा ए की पोजीशन पड़ रही है, मतलब ए प्लेस हमारी लोकेट हो रही है, तो B3 में ये लोकेट करना इजी हो जाएगा हमारी किसी भी प्लेस को. सो नेक्स्ट इज़ लॉन्गिट्यूड. अभी हमने पढ़ा कि जो लैटिट्यूड है वो तो इम्पॉर्टेंट है हमारी हीट जोन्स को डिफाइन करने के लिए, बट हमारी लॉन्गिट्यूड
क्या डिफाइन करता है, या लॉन्गिट्यूड हमें क्या फॉर्म करता है, या किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो हमारा ये टाइम डिनोट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लॉन्गिट्यूड। अब जैसे हमने पढ़ा कि इसका जो मिड पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, प्राइम मेरिडियन। ओके, जैसे ये समझ लीजिए ये मिड पॉइंट है, तो जब भी ओवरहेड होगा यहाँ पर को सन जो होगा वो ओवरहेड होगा, तो यहाँ पर को इसका मिड पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा 12 नून, दिन का टाइम चल रहा है। और जैसे ही हम यहाँ से ईस्ट की तरफ को जाएंगे तो टाइम विल इंक्रीज, और वेस्ट की साइड को जाएंगे तो टाइम विल डिक्रीज होगा, टाइम क्या होते जाएगा, माइनस में जाते रहेगा। ओके, तो जैसे अगर हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है कितना, 360 डिग्री। ओके, 360 डिग्री रोटेट करती है 24 आवर्स में, तो 1 आवर में कितना डिग्री ये मूव करेगा, 1 आवर में ये 15 डिग्री में ये 1 आवर मूव करेगा, ये 1 आवर में 15 डिग्री मूव करेगा, जैसे भी आप लेना चाहे। तो 1 डिग्री कितने टाइम में मूव करेगा, 1 डिग्री में टाइम कितना चेंज हो जाएगा, 4 मिनट्स में। पर आप जैसे किसी पोजीशन में पहुंचे हैं जहाँ की प्लेस की लोकेशन है 15 डिग्री अहेड ऑफ ईस्ट ऑफ, ठीक है, हमें डायरेक्शन भी देखनी होगी, ईस्ट ऑफ 15 डिग्री ईस्ट ऑफ GMT। ओके, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। तो हम इसको कैसे निकाल देंगे, 15 × 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 60 मिनट इज इक्वल्स टू 60 मिनट। तो 60 मिनट मीन्स 1 आवर, तो यहाँ से 12 से आगे को जाएंगे तो 1 आवर का कितना हो जाएगा, 1 PM। ओके, और पीछे को जाएंगे तो यहाँ पे को 11 AM। ओके, thus in the afternoon you can read this. Okay, so now there is another point, that why do we need standard time. Okay, why every local time have its own standard time, like India has its longitude 82.5 degree east is treated as the standard meridian, जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोला जाता है। Now here is a story that Kabir lives in a small town near Bhopal. Okay, he tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England had started at 2 PM in London. लंदन में कब स्टार्ट हुआ, 2 PM में। ओके, तो उस टाइम पे को इंडिया में कितना होगा, 7:30 PM, इसीलिए वो रात को सो नहीं पाएगा। तो टाइम डिफरेंस कितना है इंग्लैंड और इंडिया के बीच में, तो इंडिया लोकेटेड ईस्ट एट ग्रीनविच, हमारा जो ग्रीनविच से लोकेट होता है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में हमारा लोकेट होता है, और हमारा GMT से टाइम कितना इंक्रीज़ है, 5 आवर 30 मिनट्स का इंक्रीज़ है। तो इससे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम पे को इंडिया में बजे थे 7:30 और लंदन में बज रहे थे 2 o'clock, इसीलिए कबीर जो है वो रात को नहीं सो पाया। सम कंट्रीज़ हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड मतलब उनका एरिया बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होता है, जैसे रशिया का हम देखें तो काफ़ी एक्सटेंड है, तो वहाँ बहुत सारी उनको स्टैंडर्ड टाइम लाइंस बनानी पड़ती है। ठीक है, तो द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच जोन दस कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। ओके, सो 1 आवर का डिफरेंस होता है। सो हेयर वी आर इन द एंड ऑफ द वीडियो, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।